Uh, Good evening and welcome you all participant in today's program on food processing industry. And we have with us Sri Akshay Jain as a faculty. And before that, I want to request all the participants to put your hand on your heart for our institute motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you, Vinayji, for institute motto. And first of all, I want to request you all to not to put their name and membership number in question and answer box. We all have question and answer. All have your membership number and name. When you are registering yourself, we got that number. So please don't write your name and membership number in Q&A. Okay, and Q&A is only for question, and the faculty will take care of all the question what is in the Q&A session. Maybe chat box is not open to the participant, so you all can put your all the questions in Q&A. And again, देखो बोलने के बावजूद भी please don't write your name and number in Q&A. Okay. And now today's topic is what the CA opportunity for CA in food processing unit, food processing industry. Actually, we all CA want now not a traditional practice. They want to divert business, or they want to do many work in any other industry also. But they don't know what we can have opportunity in any other industry. So, full year we have made this type of program for industry base. So what is the opportunity for CA in different type of industry? Like yesterday we did for health sector. Before that we did for banking industry, and like many more. Every month we are doing the program for each and different type of industry. That what we CA can do in that. And for today, for food process, to brief up about the food processing industry, we have with us Akshay Jain from Indore. He has his branch in Mumbai and Delhi and various places. So I request CA Pooja Kedia to formally introduce today's speaker. Pooja, please do that. Yeah, thank you, Pinky ma'am. Hello, good evening, everyone. And thank you to our chairman of WRC, CA Murtuza Khachwala ji, and vice chairman, CA Pinky Kedia ji, for giving me such opportunity to introduce our today's speaker, Mr. Akshay Jain, who is currently involved into fundraising and project advisory to food processing industries. He is a director in Sri Padma Global Business Services Private Limited. He has successfully endeavored many agro-processing projects like banana clusters, dairy projects, cold processed oil, or many more. He is also associated with various stalwarts of the food industry and has visited many countries for the purpose of financing, business development, and cooperation in the area of agriculture, horticulture, medicinal plants, and food processing as well. With all this experience and connects, he is determined to work in direction to make agriculture a profitable venture by way of food processing and contribute towards better India. Thank you.
Thank you, Pooja, for your nice introduction. So we have with us our second coordinator, Vijeta ji. Also, Vijeta, welcome. Akshay Thank ji, you. you can Pinky. start. Akshay, you can start your presentation and please brief up about the opportunity with what we can do in food processing industry. Thank you. Yeah. Thanks a lot for such a nice introduction. I'll just share my PPT with you all, and just give me a thumbs up if you are able to see it. Are you able to see the presentation? Yes, yes. Yes. So just to start with, I'll just give you a brief about the way we would be conducting this session. So it would be divided into two parts. First would be a theoretical session. क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या opportunities हैं CA को, वो आपको सबको बहुत अच्छे से मालूम है. बट जस्ट अ वार्म अप सेशन कि क्या कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या स्कीम्स हैं, दूसरे क्या क्या एवेन्यूज हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ये हम एक फर्स्ट पार्ट में लेंगे. सेकेंड पार्ट वुड बी मोर ऑफ एन इंटरेक्टिव सेशन कि आप लोग मैं उसमें उस सेशन में ये करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप लोग फूड प्रोसेसिंग एडवाइजरी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन प्रैक्टिस के साथ साथ, because everyone is now looking for any kind of specialization. So I am into food processing and doing this since last 9 years, visited a lot of countries, did good projects. और बस ये एक थोड़ा सा मेरा एक मैम को मैंने पिंकी मैम से बात करते करते उनको बोला था कि एक सीक्रेट कुछ मेरा बातों में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हाउ वी आर फंक्शनिंग एज अ बिजनेस एडवाइजर फॉर अ डोमेन स्पेसिफिक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो आई सपोज एंड आई मतलब जितने देखा है कि this is a first time ever kind of a session wherein opportunities in particular and only for food processing. सिर्फ सब्सिडीज की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो है उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करूंगा आपसे. तो ये फर्स्ट टाइम एवर सेशन है टू गिव अ ब्रीफ अबाउट आवर एडवाइजरी कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये क्या है. तो वी आर बिजनेस एडवाइजरी कंपनी डेडिकेटेडली एंगेज्ड इनटू एडवाइजरी फॉर फूड इंडस्ट्रीज. We undertake project right from its conceptualization till its commissioning, and we also assist in export marketing, government incentive, financing, technology transfers, SOP preparation, formulation of recipes, and any other allied advisory which is required for food processing industries. We also help for backward and forward integration of any existing players, and we comply. And food processing by default ही SDG compliant हो जाती है काफी हद तक, if you are aware of. And till now we have got more than 600 crores of incentive sanctioned and disbursed from various government authorities. To set a context, food processing क्यों, क्या एग्रीकल्चर क्या है, क्यों एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है. We have been hearing this. हमने स्कूल में निबंध भी लिखे होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी. 55% of the workforce engaged into agriculture, which is huge for a country like us. Then and we are contributing 20% to the GDP, right? And India is very much blessed to have a topography and soil quality wherein multiple crops, multiple fruits, multiple vegetables can be grown. We have different agroclimatic zones, and which gives an advantageous position for us. We are second in the worldwide farm outputs after China. We are largest producer of milk, pulses, jute. We are largest consumer, producer, and importer of pulses in the world. We reached the record of 316 million tons of food grain production in the last fiscal year. And for horticulture also, it was a all-time high of 341 million tons, contributing to 33% of gross value added in the farm sector. Since independence, we have grown like anything in agriculture. We were earlier, if you would have all heard of, we used to import wheat, jisse gajar ghas, or it brought a lot of different things to India. So from being a food deficit country, now we are a self-sufficient and surplus exporter company of agriculture commodities, multiple agriculture commodities. From substensive farming, we have moved towards intensive and technology-led farming.
drones and agri-tech are doing fantabulous in the current times. Then India is front ranking in producer of many crops in the world. We various which has been possible because of various revolutions which the government has brought, green, white, and yellow revolutions. Still, after all these things, we waste more than 30% of agriculture produce, which is an estimate by the government, which amounts to about 1 lakh crore rupees. Just if we just focus on this 1 lakh crore of amount, how we can stop this wastage, how we can improve the supply chain, how we can increase the processing facilities. We can the agriculture would be a turnaround point for the economy, and it will meet the government's vision to double the farmers' income, and it would be a profitable venture then. Adding more to this, government promotes food processing a lot. It is declared as thrust sector. Banks identifies as priority lending sector. So there exists umpteen potential for processors and all the stakeholders in the complete agri and food processing value chain. Processing also is important because it reduces wastage, which is ultimately a loss to the nation, and it translates to saving valuable water and soil resources and reduce carbon emissions. Food processing also becomes very much important because we need to feed 8 billion people all over the world. So agriculture and food processing goes hand in hand, and thereby there may be many points wherein food processing is criticized, but still it is a very much requirement, and it is very much required and crucial for the times to come. Value addition by food processing is, as I said earlier, it is capable to turn around the economy of the country. Now we have been talking, इतना सब बोला, food processing तो होता क्या है food processing, क्या चीज होती है food processing, how would I technically define food processing? So technically speaking, food processing is action of performing series of food processing is action of performing series of mechanical or chemical operations on agriculture produce in order to change or preserve it for a longer time. And food processing increases the shelf life of various commodities, whether it be fruits, vegetables. When you preserve it, when you process it, it extends the shelf life to different periods, and it reduces wastage, provides a lot of employment opportunities, because agriculture being a 55% contributor, it has 55% of population working, so a lot of people are employed directly, indirectly, and thereby you are in a way contributing to the GDP as well of the country. Now coming to various avenues which are available for food processing industries, if we talk about, these are the routine practice areas which we are practicing, and I need not tell anything about it. I am nobody to tell you all about all these practice areas, whether it be taxation assurance, corporate advisory, finance advisory, transaction advisory, transfer pricing. This you are all doing. Majority of the chartered accountants, you are more capable of talking on it. So moving to the next slide, the new opportunities which you can target for, which you can look for, and which we will discuss in respect to only food processing industries is, one is subsidies, government incentives. Again, a lot of chartered accountants, CAs are practicing in this domain, this area, but still to give an idea. So there are multiple schemes, multiple departments, multiple ministries which are providing subsidies in one form or another, and different kind of assistance and incentives to food processing industries. So first, if we talk about Ministry of Food Processing Industries, the core ministry looking after food processing, PIS scheme, which was there some time back, production linked incentive scheme, which was for the champions of the industry, and many players got
very, very lucrative, very, very handsome incentives and are getting incentives under this scheme. Just contrary to this, another scheme which the Ministry of Food Processing runs is PMFME, which is only for micro food producers. So keeping the balance between all kind of food processors in India. Another scheme which is an umbrella scheme, and recently in August only its deadline was, the expression of interest was released, is Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. And under this schemes, there are various different sub schemes wherein you get benefits up to incentives up to 50 crore of rupees, and different percentage for different areas from 35 to 50%. One is Operations Green, wherein 21 fruits and vegetables of all regions are listed, and integrated value chain of such fruits or vegetables, if is being set up, you get incentives up to 15 crores. Mega food park, 50 crores of incentives you get. Cold chain is again an infrastructure project, which is classified as infrastructure under Income Tax Act as well. Mega food park also is classified as infrastructure project. Then another scheme is agro processing cluster, again an infrastructure project under Income Tax Act as well. You get subsidy up to 10 crore rupees. Unit scheme is for independent units that you set up in designated areas. Then above all, these schemes were for setting up new units and promoting new units, promoting infrastructure. Then backward forward linkage is a scheme wherein if you are an existing player and if you set up a backward or forward integration to your existing units, you get incentive for that. Then when there are a lot many food processing industries coming up, and with the new laws, new framework, and new regulations coming up for food processing industries from the regulator FSSAI, you require a lot of food testing laboratories, which is covered under the last scheme of PMKSY, Food Safety and Quality Assurance, wherein you get subsidy up to 75% for setting up food testing laboratories. Another department which again is helping food processors and agriculture in a way is Department of Agriculture and Farmers Welfare under Ministry of Agriculture. There is this fund which was released, which was announced during COVID, is Agricultural Infrastructure Fund. A lot of interest subvention and loans is being provided under this fund. Then there is integrated scheme of agriculture marketing. Mission MIDH is again a umbrella scheme, Mission for Integrated Development of Horticulture scheme. So I would be talking about this scheme in the later slides. Then ENAM is again digitalization of mandis, which is happening. So this is a portal and a scheme for that. NABARD, most of you must have heard about NABARD, and it is financial institution working for agriculture and for food processing majorly. So if you are under NABARD, under this scheme, New Agriculture Marketing Infrastructure Scheme, most of the warehouses which are being set up are being incentivized under this scheme of New Agriculture Marketing Infrastructure. Then there is this amazing scheme of Agri Clinics and Agri Business Center scheme for promoting dairy entrepreneurs and breeding of better dairy, better cattle feed. So better cattle. So this is a scheme called Dairy Entrepreneurship Development Scheme. Then there are interest subvention schemes and loan schemes under NABARD for various mega food park, which I talked about in the previous slides. So you get interest subvention and loan under interest subvention scheme. Then there is credit linked capital subsidy scheme from NABARD. NABARD also runs an innovation fund for agriculture and food processing, wherein if you have any unique proposition in agriculture and food processing, you can submit, you can apply under this fund for soft loans as well under NABARD. Then there are schemes from Department of Science and Technology. Again, if there is new technology that you are coming up with, any new product that you have developed, new technology you are working on, you can get grants from DST, which they have been very generous of providing amazing grants and at very lucrative proposition to entrepreneurs. Then Small Farmers Agribusiness Consortium is again another government body wherein you get venture capital assistance from SFAC. And venture capital assistance is how much, any amount of equity that you put in. If for example, in a project,
you get term loan for the equity portion. The amount of equity that you put in, you get 26% as venture capital assistance from SFAC, which is again great help and great assistance to the entrepreneurs. The other schemes from SFAC are National Agriculture Market Scheme, FPO scheme. They promote a lot of FPOs, so FPO scheme is there. Then equity grant scheme. This is again a scheme for FPOs, farmer producer organization. We spoke about MIDH. MIDH has different sub schemes and boards which are working under MIDH. One is dedicatedly working towards Northeast and Himalayan states. So government is on a mission to promote Northeast and promote industries in Northeast and Himalayan states. So there is this scheme called HMNEH, wherein lucrative subsidies are being provided to entrepreneurs. Then there is a scheme called National Horticulture Mission. This scheme is funding the state governments, and the state governments in turn give incentives to the entrepreneurs under NHM. NHB is a National Horticulture Board, again set up by MIDH, wherein they, from different various schemes under NHB, there is one scheme for cold storages. If you set up a cold storage more than 5,000 metric ton, you get incentives up to 35% from NHB. Then there are some product specific boards which are being formed, like the Coconut Development Board, Spices Board, Tea Board, and many others, wherein for particular product wise, they are giving multiple kind of assistance. It may be financial, technical, and any other kind of handholding which is required. They also promote entrepreneurs which are registered under their board in the various exhibitions in India and abroad as well. Then another department which is majorly working towards exports of agriculture commodities and processed food is APIDA. Most of you must have heard about. And then another for again a dedicated fund for animal husbandry infrastructure and development is this fund, which is dedicatedly working towards dairy and poultry. Then under Ministry of, we discussed Ministry of Food Processing, we discussed Ministry of Agriculture. Then this is Ministry of Consumer Affairs, where they run two different funds for food processing industries. One is the Sugar Development Fund, which is incentivizing, which is providing loans to all sugar mills. Another is Ethanol Blended Petrol Program. This is an initiative by the government, and wherein they are blending petrol to reduce the making ethanol and petrol substitute, a crude substitute. They are promoting ethanol based industries. Ethanol is majorly derived from bagasse, from the sugarcane, then from rice, from various other pulses and grains. So they are deriving ethanol from these products. So government is giving soft loans and interest subvention to ethanol programs as well. Then DGFT, again, just I have mentioned to talk about, but DGFT also on exports gives different kind of duty scripts, duty drawbacks, and there is this export promotion capital goods scheme, wherein if you import machineries, capital goods, if you import capital goods for setting up new plants over here in India, and then export your finished goods, you get duty drawbacks under EPCG scheme. All these schemes which we discussed are all central based schemes. Apart from central based scheme, there are numerous schemes which every state government is running, which are providing various different kind of multifold benefits which they are providing. So it may be soft loans, interest subventions, grants, venture capital assistance, capital subsidies, back-ended subsidies, duty drawbacks, tariff reductions in your electricity and other mandi. Then there is also reductions in mandi cess. They also provide GST credits from different. Then after subsidies, the new practice area which a chartered accountant can look at is compliance advisory. So food processing is a very growing sector. I would say it is not yet very much as saturated yet. It is still a growing, and it is in its nascency. So
Compliance advisory is one good thing which you can look at. So FSSAI being a regulator of food industries, food processors, it is coming up with new regulations, new circulars every day and in and out. So you can look at compliance advisory for a lot of clients, because being a CA, we understand law very well, and we can help our clients in this. Also, labeling norms, India and abroad. This is one pain point for many of the processors to properly adapt to labeling norms. So this could be also one thing which you can look at in the compliance advisory domain. The next is certification. Again, continuing to food industry being a nascent industry, it has a lot of India being a largest grower has also a lot of export potential. So when we go for exports and we do all such kind of activities, there are a lot of certifications which are required. FSI being a common one, ISO, again, there are a lot many people who are doing, but still a chartered accountant can guide their clients into certification advisory. If you are exporting to European region, then kosher is required. If you are exporting to GCC countries, Gulf countries, Arabic countries, halal is required. If you are exporting to US FDA certification is required. So understanding these certification norms, you would be very much easily able to advise clients to get those certification, which is a new area wherein very limited professionals are working on both the certification and the previously talked about compliance advisory. So these two are very much not very much touched upon. Some just random other opportunities that you can work on is marketing research advisory. So when you understand what exact requirements, example, just to give an idea, the Gulf region is not very much good in agriculture. They don't grow much things. They import a lot of things from everywhere from the world. Be it we are the largest exporter of, say, example, rice, wheat to the Gulf countries and various other countries. So when you understand what are the export requirements, you can help your client in marketing. Just give them advisory what all they can target, and there are various forums where you can join and get direct connects of various buyers and importers and distributors. Then again, talking about GeM is, I suppose, lot of talk is happening around GeM and government procurement, and there GeM, you can help and assist your clients to get registered on GeM and help them market their products, because majority of the government buying would happen through GeM from now on. Like, government is very much pushing around it. Then there are a lot of country specific requirements, which every country has different requirements. So just if you follow what is happening in the country, you would be able to make out of it. It is not a one day process. ये कोई एक दिन में नहीं है कि आज मैंने आपको कुछ चीजें बताई तो आप कल इसको एकदम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, मगर it would happen gradually over time. But एक अच्छा ये भी एडवाइजरी है कि जैसे रिसेंटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, फिर दूसरे कंट्रीज के साथ भी हम CEPA साइन कर रहे हैं, काफी सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं. तो दिस इज अ वेरी गुड रिक्वायरमेंट. मतलब G20 समिट में हम जब प्रेसिडेंसी कर रहे हैं तो उसमें काफी सारी रिक्वायरमेंट आएंगी. तो व्हेन यू गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, तो ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे यहाँ पे अगर कोई क्लाइंट कर रहा है तो बिकॉज क्लाइंट जो रहता है, जो प्रोसेसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये इनको इतनी चीजें ध्यान नहीं रहती. सो पुटिंग दिस एज योर प्रैक्टिस, कि अगर हम उसको उस तरीके से पुटअप करके करते हैं कि इफ यू टारगेट दोज रीजन्स, कि we are targeting Australia, we are targeting the Gulf, we are targeting European market. So you can do this in very good way, the marketing research advisory part. Then again, one this diversification advisory we come across every now and then. तो जितने existing players हैं of different industry, it may be, maybe they are doing they are into steel industry. We get approached by a lot of
business houses and industrialists, wherein they are looking for diversification. So just to give an example, one of our client who is big into tobacco and tobacco related products and every and of all that sort. So they don't want their kids to get into tobacco industry. They are looking for diversification for their the second generation which is coming. So diversification advisory and advising your clients for new business, new age business, new products, new technologies is going to be the thing anytime and any time in the future also. If you are updated with the new technologies, new happenings of the government, maybe it may be, because government भी कोई नया regulation लाती है, so there are lot many things which can be done around. For example, just to give an idea, government did a pilot project around fortification of rice. So जब fortification rice लाया उन्होंने, तो बहुत गिनती के लोग थे जो rice का fortification करते थे. And by 2024 government is planning कि 100% जितना मध्याह्न भोजन में खाना जा रहा है, मिड डे मील में खाना जा रहा है, या इसके अलावा जितने गवर्नमेंट के जो किचन्स चलते हैं, हर जगह they would be using fortified rice. And fortified rice is nothing but rice being pulverized, then added with minerals, and then again extruded is fortified rice. So we did recently a couple of projects for such of rice fortification, wherein they are all supplying to the government in big way, unimaginable way. So diversification advisory all around, looking, keeping your eyes and ears open and being updated would be very much necessary for diversification advisory if you do to your clients, and it pays really well. I will not tell you, you will understand it very well, but it pays very well. Then another, which is a very niche area and requires a lot of expertise, is projects of, say for example, Asian Development Bank, FAOs, World Bank, and various other such a financial institution of international level. If you log into ADB Bank website, if you log into ADB's website, you will see a lot of projects being offered for consultants. So if you have such kind of niche for it, I would be able to provide, and you are working on those lines. So this is a very good practice area and completely untouched. So, but because we do a little bit of projects with ADB, so we understand they don't receive proposals at all. Another, these are apart from these, you can also help your clients who are going to set up new industries. You can help them in, this is again, we as a chartered accountant, हमारा क्या मोटिव रहता है कि आप कोटेशन ला दीजिए, आप आपका प्रोफाइल दे दीजिए, हम आपके लिए डीपीआर बना देंगे, हम डीपीआर बैंक में लगा देंगे, हम बैंक से फाइनेंस करा देंगे, राइट? यहाँ पे हमारा आके हमारा मोटिव इतना रहता है, जो फाइनेंस एडवाइजरी जितने लोग कर रहे हैं वो इस ब्रैकेट में ही करते हैं. You can add one more thing along with it is कि आप request for quotations और टेंडर प्रोसेसेस भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, which pays very well. आपको एक बार की मेहनत रहती है, आपको टेंडर फ्लोट करने हैं, आपको RFQs फ्लोट करने हैं, आपके पास कोटेशन आते हैं, तो क्लाइंट उसके लिए भी पे करता है, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना समय अगर आप उसको देंगे, तो वो अगर आप सर्विस ऑफर करते हैं तो ही वुड बी रेडी टू टेक दैट सर्विस आल्सो फ्रॉम योर एंड, कि आप उनके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्या कैसे स्पेसिफिकेशंस रहने चाहिए, क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, किस वेंडर को आइडेंटिफाई करना, क्या टर्म्स पे आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीजें भी आप आपकी फाइनेंशियल एडवाइजरी वाली डोमेन में ऐड कर सकते हैं, विच पेज रियली वेल अगेन, जिसमें जितना एफर्ट्स नहीं लगाने रहते हैं. मतलब टॉक अबाउट रूटीन प्रैक्टिस जो हम करते हैं, रूटीन प्रैक्टिस के बजाय अगर आप इसके आपकी फाइनेंस एडवाइजरी के साथ इसको भी ध्यान देते हैं, तो इट पेज रियली वेल. सो दीज आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज विच आई डिस्कस्ड. मतलब ये एक मेरा, जो मैंने जब आप स्टार्ट किया था तो आपको बोला था कि एक 2 फेज में करेंगे हम ये वेबिनार. तो फर्स्ट फेज हुआ कि आई ब्रीफ्ड यू लॉट अबाउट क्या क्या होता है, कैसे कैसे हो सकता है, एंड मैं ये चीज पक्की है कि यू नो वेरी वेल देन मी, आप प्रोफेशंस के लेजेंड्स हैं, तो हम ये सब चीजें तो है. दूसरा मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ, या मैं जो बात करना चाहता हूँ, आई वांटेड टू बी मोर इंटरेक्टिव, कि कैसे किया जा सकता है कि इफ यू वांट टू बिकम अ फूड प्रोसेसिंग एडवाइजर, कि आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एडवाइजरी करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ. केस टू केस बेसिस पे बात कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस. फर्स्टली आई विल शेयर हाउ वी डू, हम कैसे करते हैं,
क्या होता है, कैसे किया जाता है। मैं मेरी जो मैडम को मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सीक्रेट, तो हम हमारा वर्किंग मेथोडोलॉजी कैसा है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम किस तरीके से काम करते हैं। बाद में आपको आपके स्पेसिफिक कोई भी चीज पूछनी है, कोई भी चीज, कोई पॉइंट आपको इस बारे में डिस्कस करना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज आई बिलीव एंड यू विल ऑल एग्री, मतलब देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नथिंग टू डिनाई अबाउट इट कि फूड प्रोसेसिंग इज अ एवरग्रीन इंडस्ट्री, यह हमेशा रहने वाली है, कभी इसका कोई अंत नहीं है। आदमी को सुबह उठ के नाश्ता करना है, खाना खाना है, शाम को खाना खाना है, और जितनी मेहनत करनी है सिर्फ खाने के लिए करनी है ना, तो खाना हमेशा रहना है। एंड विद द एडवेंट ऑफ टाइम, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, समय कम होते जा रहा है, लोगों के पास दूसरी व्यस्तताएं ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो प्रोसेस्ड फूड बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ने ही बढ़ने हैं, है ना। कि आप घर पे नहीं पीस रहे कोई भी आटा, घर पे कोई मसाले नहीं पीस रहा है, सब बाहर जाते हैं, पैकेज्ड फूड लाते हैं, सब फ्रोजन चीजें बाहर से आ रही है, और कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है। यू कैन सर्च लॉट ऑफ मटेरियल ऑन द इंटरनेट कि कितना इनका ग्रोथ है। सिर्फ मैं जैसे आपको बताऊं तो फ्रोजन एक बड़ा इंडस्ट्री है जो खूब अच्छा ग्रो कर रहा है। डेयरी, आइसक्रीम, मतलब डेयरी में भी स्पेशलिटी डेयरी, इफ आई टॉक अबाउट योगर्ट्स, आर्टिसनल कर्ड्स, स्मूदीज, ये सब चीजें तो चल रही है। बट इफ यू लुक एट, न जाने क्यों आइसक्रीम का ग्राफ बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, कि पीपल आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ आइसक्रीम दीज डेज। सो दीज प्रोसेस्ड फूड्स आर देयर टू स्टे फॉर एवर, है ना। तो इफ यू टारगेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि भी मतलब मेजोरिटी हम सब कहीं ना कहीं एक फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं, 11th-12th भी कहीं कॉमर्स रहता है, उसके बाद फिर बीकॉम, फिर हम आते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बाद। मुझे लगता है अक्षय जी, क्योंकि कोरोना में फूड इंडस्ट्री को वो नेसेसरी में रखा था ना, उसके ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो जितने भी हमारे, मैं खुद के एरिया की बात करूं तो फिजिकल एरिया की जो बात करती हूँ, तो अंधेरी में स्टेशन के पास जितनी भी दुकानें बंद हुई, सब में सिर्फ फूड और फूड के ही रिलेटेड दुकानें खुली है। बिल्कुल बिल्कुल खुली है। मतलब अब पहले अंधेरी में हमारे स्टेशन के पास में फूड की दुकानें, फूड से रिलेटेड दुकानें बहुत कम थी, और अभी वही मैक्सिमम हो गई है। जी। लोगों ने बाकी चीजों की दुकानें बंद कर करके फूड की खोली, क्योंकि वो नेसेसरी आइटम में था, एसेंशियल आइटम में था, और वो चल रहा था। जी मैम, बिल्कुल। इसके लिए भी फूड मार्केट ज्यादा हो गया है अभी, लगता है मुझे। बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विथ यू मैम, कंप्लीटली एग्री विथ यू। तो मतलब ऑल विच इज रिक्वायर्ड इज हाइजीन एंड बेस्ट क्वालिटी फूड्स। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको अच्छी क्वालिटी का फूड और सब चीज मिल रही है, तो everyone would be standing in line to buy any kind of food. So this was all about it. Now to share कि how we do, हम कैसे करते हैं, कैसे चीजें होती हैं, तो I'll just again give a brief around it. आप लोग you all also understand it very well. हम इसको केस टू केस बेसिस पे एक जो इंटरेक्टिव सेशन हम नेक्स्ट इसके बाद करते हैं, मैं मेरा एक बार हमारा वे ऑफ वर्किंग बताने के बाद हम लोग बात करते, तो इट वुड बी मच मोर बेटर। एक चीज जो बड़ा हर कोई कहता है, मतलब एक मेरे पापा काफी कहते हैं मेरे को कि डाले पानी से गंगा नहीं बहती है। आपके मन में आना चाहिए, इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। मैं 9 साल से फूड प्रोसेसिंग एडवाइजरी कर रहा हूँ, 9 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, फिर भी आई एम स्टिल अ लर्नर। बहुत सारी चीज सीख रहा हूँ, रोज नई चीजें सीखते हैं, हर क्लाइंट के साथ नई चीज सीखने मिलती है, हर क्लाइंट के साथ हर प्रोजेक्ट पे हम नई चीजें काम करते हैं, और नई चीजों मतलब वो अगले दिन से नहीं होती हैं। तो बट इफ यू डेडिकेटेडली वर्क इन दिस लाइंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इट विल रियली पे वेल। एंड जो हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आजकल देख रहा है, जितने लोगों से बात होती है, एवरीवन इज फेड अप विद, नॉट फेड अप वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, बट नॉट वेरी मच कंटेंटेड विद द रूटीन एडवाइजरी, कि बहुत कंप्लायंस बेस्ड और बहुत एक लेबोरियस प्रैक्टिस होती जा रही है धीरे धीरे जो, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग इज अ वेरी गुड डोमेन टू लुक एट। नाउ टू शेयर माय वे ऑफ वर्किंग इज कि द वे वी वर्क, मैं बड़ा एक इनफॉर्मल वे में, और कोई पीपीटी के साथ नहीं, कोई पॉइंट्स के साथ नहीं, जिस तरीके से काम करता हूँ पूरा का पूरा अनफिल्टर्ड वे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कुछ छुपाना है या कुछ बताना नहीं है, या उस तरीके कहीं भी कोई भावना नहीं है। आज तक कभी किसी के साथ ऐसी बात नहीं करी है मैंने जो आज करने वाला हूँ। कई लोगों को लगता है कि यार कैसे करना, क्या करना, मतलब यू गेट एन आइडिया, बट आपको यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। तो अब इससे आपको निष्कर्ष निकालना रहेगा। यू नीड टू फाइंड द रिजल्ट एंड यू नीड टू फाइंड योर ओन वे
of getting into food processing industries advisory. So the way we function is we understand the client very well, we understand the geography very well from where the client is coming. बहुत intensive research, intensive study करने के बाद, export markets को समझने के बाद, मतलब काफी समय हम काफी travel export से इसलिए बाहर abroad इसलिए करते हैं कि वहाँ के markets को समझ सकें, इंडिया में उसको replicate कर सकें, जिससे यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके. So with that vision in mind, जब मैं मतलब इनिशियल डेज में जब इतना रेवेन्यू भी नहीं होता था हमारा, जितना रेवेन्यू होता था उससे ज्यादा मेरे खर्चे करता था मैं फ्रॉम ओन फंड्स, फ्रॉम फैमिली फंड्स, कि हम किस तरीके से खुद को ग्रो करें, बाहर को समझें और फिर इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करें. So we visited a lot of countries. We visited Japan, stayed there for 15-20 days, identified what they like to eat, what is the problem over there in food, क्या कर सकते हैं. Same thing with Korea, same thing with USA, UK, Germany, Switzerland, lot of European countries. तो एक्सपोर्ट्स के पोटेंशियल समझने का दुबई में मैंने फिर मेरा ऑफिस चालू किया था कि वहां से गल्फ सब रीजन काफी कनेक्टेड रहता है, तो दुबई में यू गेट एन लॉट ऑफ आइडिया. तो दुबई में जब ऑफिस था तो दुबई में भी यही समझना कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है फूड की, सब समझने के बाद, एक होमवर्क करने के बाद, तो वी स्टार्टेड अ बॉटम अप अप्रोच कि पहले नीचे का समझ लिया कि कहाँ माल बिकेगा, क्या क्या चीजें होंगी, किधर बिकेंगी, किस तरीके से करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स चलते हैं. उसके बाद हमने लोगों को यहाँ प्रमोट करना चालू किया कि यार तुम ये चीज करो, ये इंटरनेशनली भी चलती है, इंडिया में तो चलेंगी ही चलेंगी. मतलब गिविंग देम एन आइडिया अबाउट इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल. तो आवर विजन फ्रॉम डे वन हैज बीन वेरी मच क्लियर कि रिमेन लोकल बट थिंक ग्लोबल, जो मोदी जी भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं है, तो उस लाइंस पे हम काफी काम करते हैं. तो वी अंडरस्टैंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर क्लाइंट, उनको क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं. उसके बाद वी सजेस्ट देम कपल ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज कि आप अगर ये कर रहे हैं, आप इस जैसे इस जोन में हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, वेस्टर्न रीजन से हैं सब, तो नागपुर में संतरे बहुत होते हैं, तो संतरे पे क्या किया जा सकता है. संतरे जब सीजन में आते हैं, तुड़ाने के पैसे नहीं मिलते हैं किसानों को, प्रोसेस कुछ करते नहीं है. वेर इन इफ आई टॉक अबाउट फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा बीइंग द लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ ऑरेंजेस, वो 90% ऑरेंजेस का जूस बना देता है, और हमारे 3-4% ऑरेंजेस का ही जूस बनता है, बाकी और संतरे फेंकने में जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है. तो इस चीजों को समझ के, इन पेन पॉइंट्स को समझ के, इन लाइंस पे हम हमारे क्लाइंट को एडवाइजरी करते हैं, इन लाइंस पे हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप इन इंडस्ट्री पे जा सकते हैं. सिमिलरली ये नागपुर की बात की, नासिक की बात करूं तो नासिक में ग्रेप्स खूब होते हैं. ग्रेप्स पे भी सुला का भी आईपीओ आया है, तो सबको आइडिया होगा, अगर जो भी शेयर मार्केट में है तो आईपीओ का उनका आइडिया होगा, वाइन का आइडिया होगा. आपको समझ में होंगे कि हम क्या बोलते हैं, किशमिश से, ग्रेप से वाइन्स वाला एक प्रोजेक्ट होता है, ड्राइड किशमिश जो बनती है ग्रेप से वो बनती है, और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं. तो नासिक के लिए उस तरीके से एक स्टडी करके लोगों को प्रोजेक्ट सजेस्ट करना, क्या और वैल्यू एडिशन हो सकता है उसमें. सिमिलरली नासिक में अनियंस काफी सारे अवेलेबल हैं. उसके बाद अगर मैं बात करूं 40 गांव की, तो 40 गांव में आपको नींबू खूब मिलते हैं. वहां पे नींबू का सीजन ऐसे आते हैं कि जब हम नींबू 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए में एक नींबू खरीदेंगे, मगर वहां से वो लोग जब निकलता है नींबू तो 5 रुपए 7 रुपए किलो में बिकता है सीजन के दौरान. उनको इतना पैसा भी नहीं मिलता है, मगर रिटेल पार्ट है तो देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन दैट लाइंस. बट वो इस तरीके से होता है. जलगांव तरफ बनाना खूब होता है, फिर अगेन वहां पे प्याज भी खूब होता है. तो इस तरीके से ज्योग्राफी समझ के, ज्योग्राफी में प्रोडक्ट समझ के, प्रोडक्ट की क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, उस लाइंस पे फिर हम क्लाइंट को बाहर का भी ध्यान रखे, मार्केटिंग का भी ध्यान रखे. ऐसा भी ना हो कि वी सजेस्ट आवर क्लाइंट्स, वी गिव देम समथिंग व्हिच इज नॉट कमर्शियली वायबल एट ऑल. एग्जांपल के तौर पे वी वर वर्किंग विद दिस जापानीज चैप हु डेवलप्ड प्रोटीन फ्रॉम सीताफल. सीताफल के बीजों से उसने प्रोटीन निकाला है ना. प्रोटीन आपका पी से भी निकल रहा है, प्रोटीन आपका दूध से भी निकल रहा है, प्रोटीन आपका पल्सेस से भी निकल रहा है. देयर आर लॉट ऑफ प्रोटीन सोर्सेस, बट फ्रॉम हिज theory and from his PhD and everything, he was a very gentleman chap and very learned. तो उन्होंने जो डिराइव किया, उन्होंने सीताफल के बीजों से प्रोटीन डिराइव किया. एंड व्हेन वी स्पोक अबाउट इट, वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट इट. बहुत दिन तक हमारा उस पर डिस्कशन भी चलता रहा. हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात करी कि इस तरह का प्रोजेक्ट है, सब चीज है. बट व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट,
जब हमने उसकी एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तैयार करी, तब समझ में आया कि वो तो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। तो देर आर प्रोजेक्ट्स, देर मे बी प्रोडक्ट्स विच आर पॉसिबल, प्रोडक्ट्स मे बी पॉसिबल, बट देर शुड बी फाइनेंशियली फिजिबल ऑल्सो। तो वी प्रिपेयर देन अ फिजिबिलिटी स्टडी फॉर आवर क्लाइंट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर आवर क्लाइंट, कि ये प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा है, इस तरीके से होगा, और इसके ये रिटर्न्स, ये टेंटेटिव आपकी कॉस्ट शीट बोले, प्रोजेक्टेड P&L बोले, बैंकिंग के हिसाब से नहीं बनती है वो, फिर सारी बनती है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इन्वेस्ट करेगा, तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा आज के करंट सिनेरियो में, उसको ध्यान में रखते हुए रेशियोस फिट करने के हिसाब से नहीं बनाते हैं हम वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट। हम वो क्लाइंट को शेयर करते हैं, क्लाइंट उनके पास उनके लेवल पे डिस्कस करके, समझ के, उनकी जो दूसरी अगर कोई टीम्स हैं उनमें बात करके, देन दे कम बैक टू अस, देन द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वर्क्स हैपन, कि उसका कंसेप्ट हमने प्रिपेयर कर लिया, अब उसके कमिश्निंग के पार्ट पे आते हैं हम। वेंडर्स क्या क्या आएंगे, टेक्नोलॉजीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवानी पड़ेगी क्या हमें, किस लोकेशन पे हमको सेट करना रहेगा, कहाँ इंसेंटिव ज्यादा मिलेंगे, कि अगर, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र अगेन, महाराष्ट्र में जो आपकी सब्सिडी स्कीम है वो जोन बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, जोन ABCD DD प्लस, इस तरीके से आपकी सब्सिडी स्कीम बनी है, पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019। तो हम उसके हिसाब से कि कहाँ उनको ज्यादा बेहतर बेनिफिट भी मिलेगा, ऑपरेशनली भी फिजिबल होना चाहिए उसके बाद। ऐसा नहीं है कि आप उनको कहीं यू सेट देम अप इन सम वेरी मतलब गॉड फोर्सिंग प्लेस की, जहाँ जाना आना ही मुश्किल हो जाए और ऑपरेशन मैनेजमेंट ही बड़ा टफ हो जाए। तो आफ्टर deciding on all these factors, there are multiple factors which go into all these decisions. Then we start the RFQ process, tender process. बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइडर एट रीजनेबल कॉस्ट वी ट्राई टू फाइंड फॉर देम। देन द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, उसके बाद एग्जीक्यूशन के दौरान ही सब्सिडी का काम आ जाता है, फाइनेंसिंग का काम आ जाता है ना। उसके पहले जो रूटीन आपका CA वर्क है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया या दूसरी चीजें हो गई, वो सारी चीजें करने के बाद, प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद, हम फिर उसकी एक्सपोर्ट मार्केटिंग या इंडियन मार्केटिंग, मॉडर्न ट्रेड में कैसे जा सकता है ना। तो उन लाइंस पे एक बड़ा रॉ फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से एक पूरी इंडस्ट्री हम सेटअप कराते हैं, इस तरीके से एक पूरी इंडस्ट्री का काम करते हैं, जिसके बाद फिर काफी सारी ट्रबल शूटिंग आती है बीच में, बहुत सारे दूसरी चीजें, चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें जिनको देखना रहता है। तो उन सब चीजों के बाद एक इंडस्ट्री सेट होती है। तो एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, मतलब ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ सेटिंग अप दैट इंडस्ट्री, एवरी पार्ट इज मतलब अगर मैं फाइनेंशियल्स की, कमर्शियल्स की बात करूं, तो हर चीज के लिए वी हैव मतलब एक जो जिस तरीके से फाइनेंस करना है वो उस तरीके से उसमें फाइनेंस होता है। मतलब उस तरीके से हम उसमें हमारी वो करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। तो अगर आप हमसे ये काम कराएंगे तो हम ये फीस चार्ज करेंगे। तो उस तरीके से एक पूरा मॉडल बनता है हमारी फीस का भी। मैं फीस की बात भी आपसे इसलिए खुल के कर रहा हूँ कि आप काम करना चाहेंगे, चालू करेंगे, जब भी चालू करें नहीं करें, मगर फर्स्ट थिंग विच वी वर्क फॉर इज द कमर्शियल पार्ट, कि फीस किस तरीके से रहती है। तो वो भी एक हर पार्ट, मतलब इट इज वेरी, मतलब आई फाइंड मतलब इस तरीके से एडवाइजरी करते हैं ना, तो यू स्टे विद योर क्लाइंट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, कि जब तक वो कमाता रहेगा। और इंडस्ट्री एज इन, मतलब क्लाइंट, CA का ही एक ऐसा अकेला प्रोफेशन है जो क्लाइंट के ग्रो होने के कारण ग्रो होता है, CA। नहीं तो दूसरे प्रोफेशन अगर आप देखें, ये बड़ा व्हाट्सएप पे भी चलता है, सब चीजें विच इज वेरी मच एक जोक के तौर पे ही चलती हैं, बट इट इज वेरी मच एविडेंट कि व्हेन आवर क्लाइंट ग्रोज वी ग्रो। तो हम हमारे क्लाइंट को किस तरीके से ग्रो करवा सकते हैं, इस लाइंस पे, इस माइंडसेट के साथ, इस प्योर माइंड के साथ अगर आप जब भी काम करेंगे तो यू गेट वेरी वेल पेड। आपको नो डाउट उसमें कहीं से कहीं तक कि प्रोफेशनल फीस में कोई कमी आएगी ना, आगे अपॉर्चुनिटीज में कमी आएगी। सो दिस इज इन वेरी मच, मतलब एक ओपन हार्टेड मैंने आपके साथ बात करने की कोशिश की कि हम किस तरीके से एडवाइजरी करते हैं, कैसे करनी चाहिए, इसमें वे कैसे निकालना है, वो चीज आप मेरे साथ और डिस्कस कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल एनी टाइम। आप हम अभी भी हैं, बाद में भी हैं। तो ये एक ब्रीफ है। नाउ आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द अटेंडीज कि उनके मन में कोई डाउट है इस बारे में, कुछ और पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं।
पिंकी मैम आप help करेंगे मुझे? एक्चुअली यहाँ पे 4-5-6 क्वेश्चन चैट बॉक्स में है. जी व्हाट इज UNSDG? हाँ, UNSDG ये एक बड़ा नया कंसेप्ट है. तो अभी SDG पे मतलब एक बड़ा अलग लेवल की प्रैक्टिस हो रही है, अलग लेवल का काम हो रहा है जिसपे हम काम करते हैं. और बड़ा मतलब बट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू. UNSDG इज यूनाइटेड नेशंस ने अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले कुछ गोल्स बनाए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से SDG होता है. इनका मतलब 17 गोल्स हैं ये. तो इनमें वो लोग चाहते हैं कि कंट्रीज मतलब कंट्री के लिए उनके डायरेक्शन से, और हर कंट्री मतलब आप मानेंगे नहीं, जितनी पॉलिसीज आ रही हैं गवर्नमेंट की सारी SDG के अराउंड है. SDG जब से आया है तो SDG के अराउंड उनको पॉलिसीज लानी है, बिकॉज हम उसके पार्ट हैं, UN के पार्ट हैं, इसलिए भी कि एम्प्लॉयमेंट हमको बढ़ाना है, हमको प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है, पुअर्टी कम करनी है, लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाना है, सबको खाना मिलना चाहिए, है ना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए. इस तरीके से 17 गोल्स गवर्नमेंट मतलब UN ने डिफाइन करे हैं, जिसके ऊपर इंडिया इनफैक्ट सारी कंट्रीज डेडिकेटेडली काम कर रही है. तो SDG एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए. SDG के ऊपर काफी सारे आपको लेक्चर्स मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट के भी हुए हैं, कुछ मैंने भी अटेंड करे थे पहले. तो SDG इन शॉर्ट ये है. तो SDG पे एंड फूड प्रोसेसिंग डिफॉल्ट SDG कंप्लायंट है पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री. बहुत सारे फंड्स जो हैं, अगर मैं बात करूं, हम फॉरेन फंडिंग का भी काफी काम करते हैं. बहुत सारे फंड्स सिर्फ SDG कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स को ही फंडिंग कर रहे हैं आजकल. मतलब दे हैव चेंज्ड देयर व्यू, दे हैव चेंज्ड देयर आउटलुक कि हमको जो SDG कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स हैं हमको उन्हीं में ही काम करना है. तो इस तरह के भी आपको काफी सारे फंड्स मिलेंगे जो काम कर रहे हैं. तो SDG ये होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट द PPT. तो खैर कैसे मिलेगी लोग पूछ रहे हैं. कर दूंगा मैं, आपको दे दूंगा, आप दे देंगे जी, कोई प्रॉब्लम ओके, WRC के आप ईमेल पे दे दीजिएगा. तो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है वी विल सेंड टू देम. नॉट अ प्रॉब्लम. मैं इसमें ये क्या लिखा है, CLSS इज एक्टिव नाउ आल्सो. क्या लिखा है? मैं ये वंदन गोयनका जी का क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ क्या उन्होंने लिखा है. देन कैन आई असेस द रिकॉर्डिंग. ये भी हमें वो YouTube में हम लोग डालते हैं, मिल जाएगी आप लोगों को. ठीक है. देन मैं सब लोग मेनली तो यही मांग रहे हैं कि CLSS स्कीम इज एक्टिव. CLSS स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपिटल नाबार्ड की, ये ऑफ एंड ऑन एक्टिव रहती है. अभी रिसेंटली कुछ समय से भी एक्टिव नहीं है, मगर वापस से आने वाली है, नए फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगी. तो मतलब सब्सिडी वाला एक पोर्शन अपने आप में एक अलग ही है. हम उस पर कम बात करते हुए फूड प्रोसेसिंग एडवाइजरी में आपको कुछ तरीके का अगर चाहिए तो मैं पिंकी मैम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कभी भी व्हेनेवर नेक्स्ट आपके इस तरीके से अगर कभी मैराथन वेबिनार्स होते हैं तो एक पूरा सब्सिडी के ऊपर भी हम सेशन ले सकते हैं. जितनी सब्सिडी मैंने लिस्ट करी है सारी सब्सिडीज पे हम काम करते हैं, डेडिकेटेडली काम करते हैं. पूरे ऑफिस की टीम ही जो हमारी काम करती है, तो हम सारी सब्सिडीज पे भी पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू दे सकते हैं. सिर्फ फूड सेंट्रिक सब्सिडी स्कीम्स है सारी की सारी. इतनी सारी स्कीम्स है कि सबके ऊपर ध्यान रखना और तुरंत आज बता पाना वो भी एक बड़ा वो हो जाता है, चैलेंज हो जाता है. तो एक सब्सिडी इज वेरी वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस ऑन. Yes. जी how to start a business in food processing industry, how to identify the right market, how to get the license and logistic done properly. हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये मैंने काफी कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी. एक बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस लगता है इसमें कि किस रीजन में आप बेस्ड हैं, क्या क्रॉप्स वहां पे अवेलेबल है, लॉजिस्टिक्स को भी ध्यान रखना रहता है. ऐसा नहीं है कि मैं मुंबई में बैठ के गुवाहाटी में अगर कोई क्रॉप होती है, वो जो भूत जोलोकिया मिर्ची होती है नॉर्थ ईस्ट में, अगर भूत जोलोकिया का प्लांट में बॉम्बे में डाल लूं तो वो वाइबल ही नहीं हो पाएगा, लॉजिस्टिक्स इतना महंगा हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. तो
काफी सारी चीजें, काफी सारे कंसिडरेशंस रहते हैं which need to be looked at. How much you are planning to invest into industry is also very much important, कि आप कितने से चालू करना चाहते हैं. How much is your own fund which you are looking at? तो the question starts from your own fund. हमारा जब भी हम क्लाइंट के साथ बैठते तो पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं उससे, तुम पैसा कितना लगाना चाहते हो. ऐसा ना हो कि और कितना कमाना चाहते हो. ऐसा ना हो कि हम कोई क्लाइंट जो पहले ही अच्छा अर्न कर रहा है और उसको हम कोई छोटा प्रोजेक्ट बता दें. तो फर्स्ट कंसिडरेशन इज दिस. सेकंड कंसिडरेशन इज कि कहाँ लगाना है. तो उसके बाद ज्योग्राफी को देखने के बाद उसके बाद प्रोडक्ट, जो वहाँ पे हमको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या प्रोसेसिंग पॉसिबिलिटीज है, मार्केट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है. और उसके बाद फिर लाइसेंसेस, लॉजिस्टिक्स, ये सब बड़ा. लाइसेंसेस के लिए काफी सारी दूसरी एजेंसीज भी है, बहुत सारे लोग काम करते हैं. तो लाइसेंसेस आर इजी टू ऑब्टेन, नॉट अ प्रॉब्लम. तो आपको सिर्फ एक स्टार्टिंग में मन बनाना है, तो बाकी सब धीरे धीरे सब चीज चालू हो जाती है. आप if the attendee has not named himself, वो anonymous attendee आ रहा है, अगर वो जगह बताना चाहे कि वो कौन सी जगह से है, कौन सा क्रॉप अगर वहाँ अवेलेबल है, तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं. 1-to-1 एक सेशन, तो एक बाकी सारे लोगों को, ऑल द पीपल इन द हाउस विल गेट एन आइडिया कि क्या होता है, कैसे होता है. Next question is, government having a scheme or plan to reduce wastage of food, which is approximate 30%. ये क्वेश्चन गवर्नमेंट अपने, हाँ नहीं, बिल्कुल बहुत सारी प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, बट आप गवर्नमेंट से सब चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आए और इंडस्ट्री लगाए और सब चीज हो. तो इट इज गवर्नमेंट इज मतलब गवर्नमेंट का जो प्लान ये है, गवर्नमेंट काफी सारे इंसेंटिव्स दे रही है. मैंने जो आपको करीबन मेरे प्रेजेंटेशन में मेजॉरिटी स्लाइड से मैंने सब्सिडीज के वो पॉइंट लिस्ट करे कि लोग, आधे से ज्यादा लोगों को वो लुक्रेटिव ज्यादा लगता है सब्सिडी वाला पोर्शन. तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इंडस्ट्रीज बाय गिविंग अ लॉट ऑफ सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स. सो दैट इज द, मतलब एक वो प्लान तो रहता ही रहता है गवर्नमेंट का, बट गवर्नमेंट दूसरे भी इनिशिएटिव्स काफी सारे ले रही है जिससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और वेस्टेज कम हो. Hello. Yeah, Pooja. Yeah, Hello. yes, sir. Sir, our next question is, sir, Chief Minister Agro and Food Scheme is active or not? Chief Minister scheme is again a state specific scheme. So if you, Maharashtra ka, if I talk about PSI 2019 is active, package scheme of incentives jo hai, which is for food processing industries. Which scheme you are talking about, which is being mentioned in the question, I won't be able to comment on that. Chief Minister Agro and Food scheme, which government and which department he is talking about. Okay. Okay. Okay, so our next question is whether spices manufacturing comes under food processing. If yes, if my client has not obtained any subsidy registration it earlier, can I apply for it at the time of further expansion? Whether to apply for it, name some government websites. हाँ, फूड प्रोसेसिंग का अगर मैं, मतलब जो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेदर स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कम्स अंडर फूड प्रोसेसिंग. कोई भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कमोडिटी है या फिर मिल्क हुआ और मिल्क का आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एनीथिंग विच इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन और एनिमल इज फूड प्रोसेसिंग एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग. तो स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग इज 100% फूड प्रोसेसिंग. If your client has not obtained subsidy earlier and if he is going for expansion, surely he can apply for subsidy under the whichever scheme which is applicable to him. If where maximum benefit is available, कि state की लेनी है या आपको ministry की लेनी है, मतलब central government की लेनी है, तो you can surely apply for it. हर scheme का अलग अलग, हर ministry का जो या department का जो domain है या उनका जो website है, उस पर आपको पूरी डिटेल्ड स्कीम पूरी मिल जाएगी. तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स कोई स्पेसिफिक एक वेबसाइट नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट है. अगर पिन पॉइंट करके आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा. Okay, sir. Next question is, one of my client is in export of superfoods.
everything is outsourced and they pack it and sell it under their brand. हाँ, तो मतलब अच्छा, दे आर मेनली एंगेज्ड इनटू पैकेजिंग, कि सिर्फ वो रीपैक कर रहे हैं एक तरीके से बल्क में लेके। Yeah, are they eligible for any government incentive? They are asking. हाँ, तो इफ दे आर जस्ट डूइंग रीपैकिंग, मतलब कहीं से प्रोसेस करके और फिर उसको वो कर रहे हैं, तो रीपैकिंग के लिए इंडस्ट्री के बेनिफिट ले सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग स्पेसिफिक बेनिफिट कुछ कुछ स्कीम्स में कवर्ड है, कुछ कुछ स्कीम्स में नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी डिफरेंट है। तो ये अगेन एक थोड़ा सा इसमें मुझे और डिटेल्स लगेंगी तो मैं बता पाऊंगा कि हमको कैसे करना चाहिए एंड हाउ कैन वी गेट इनटू, हम मतलब हम कैसे ले सकते हैं उसका बेनिफिट, वो थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन के बाद बता पाऊंगा मैं। Okay, sir. Next one is, can throw some light on how could you develop deep industry connections outside India? Can you suggest association where these discussions take place more frequently? So there are a lot many food processing specific events that happen globally. There are a lot many food processing specific associations, jinke when you go to those places, you get idea about that industry, and also एक constant process है। ये ऐसा नहीं है कि day one पे सब चीज हो जाती है, तो सक्सेस इज नॉट ऑलवेज ओवरनाइट, सक्सेस टेक्स टाइम। वो जो कोटेशन है उसी लाइंस पे है कि एकदम डेवलप आपको, जो अगर डीप इंडस्ट्री कनेक्शंस की अगर आप जैसे बात करते हैं, तो हाँ, मतलब हमारे भी डे वन पे नहीं हुआ, कई जगह घूमे, कई जगह गए आए। मतलब हम वी हैव वेंडर्स इन जापान, वी हैव वेंडर्स इन यूके, वी हैव वेंडर्स इन यूएस, कोरिया, लंदन में है, तो वो ओवर द टाइम होंगे। बट इट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट, आप कांस्टेंट थिंकिंग ऑन दैट डायरेक्शन। आप ऐसा सोचे कि ये भी कर लूंगा और वो भी कर लूंगा, तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल रहती है। बट इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड एक तरफ कंसंट्रेशन के साथ एक ही तरफ लगे हुए हैं, तो यू डेवलप इट ऑटोमेटिकली। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, उसका कोई की नहीं है, इट हैपेंस ग्रेजुअली एंड विद कांस्टेंट इंटरवेंशन। Okay. Yes, sir. So one more question is, what are the hot food processing industries at present in Northeast? नॉर्थ ईस्ट है ना, एक कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट में आई एम वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का कंप्लीटली अनटैप्ड एरिया है ड्यू टू मेनी रीजंस। वहाँ का जो भी रीजंस हैं वो नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन इन नॉर्थ ईस्ट। मतलब वहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती है। द टेस्टीएस्ट पाइनएप्पल दैट यू गेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वुड से, इज इन नॉर्थ ईस्ट। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो केरल से भी पाइनएप्पल आता है वो भी इतना अच्छा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में इतना अच्छा मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में आप, इसके अलावा दूसरी हर्बल्स भी, मतलब जब एक कोई क्वेश्चन आया था, कहा मैंने स्क्रीन पर कहीं सुपर फूड्स नाम देखा, तो मतलब वहाँ पे जो हर्बल्स मिल रही हैं, जितनी चीजें मिल रही हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, द नेचुरल रिसोर्सेज विच नॉर्थ ईस्ट हैज, मतलब इट इज इक्वल टू व्हाट द अदर पार्ट ऑफ इंडिया हैज। नॉर्थ ईस्ट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो सर से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि वहाँ पे और क्या, मतलब हम इसको वापस कि कौन से एरिया में, कि हमको जितने 7 सिस्टर्स हैं उनमें किधर कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिस ज्योग्राफी में आप करना चाहते हैं उस ज्योग्राफी का अगर आप मुझे बताएंगे कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उस पे फिर हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। मगर बट नॉर्थ ईस्ट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत सारी चीज की जा सकती है। Okay, understood. Next question is there any special requirements for a CA to start as an advisory for this particular industry? And if starting, what should be the target client? देयर आर नो, मतलब फूड प्रोसेसिंग के लिए एज ऑफ नाउ ऐसे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सिर्फ एक बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, इंडस्ट्री को समझने की एक जो रहना चाहिए, मतलब वो मतलब you need to understand that industry very well before getting into any industry, and it happens gradually। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, 10 लोगों से बातचीत होती है, कई लोगों से आप मिलते हैं, तो you get an idea about the industry। तो there is no special requirement, कोई भी चीज की स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। माइंड इज लिमिटलेस, आप जहां से चालू करना चाहें वहां से चालू कर सकते हैं। सो देयर इज नो स्पेशल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट, बट स्टिल यू नीड टू स्टडी अ लॉट अबाउट इट। क्या क्या चल रहा है, क्या रिसेंट हैपनिंग्स क्या हो रही हैं, उसका पुराना, you need to know the history as well, the current scenario as well, and you need to anticipate the future as well, कि क्या क्या चीजें हो सकती है। Then you would become a perfect advisor for that industry. So this is what I would like to
answer. Okay. I think next question from Neeraj Bafuna. I think we got the answer before हाँ. that for Northeast India के लिए. Next is मुख्यमंत्री कृषि व अन्य प्रशिया योजना. ये एक बार मैं आपको इसके बारे में चेक करके बता दूंगा. So Okay. मतलब probably he's asking it specifically for महाराष्ट्र. So वो एक हमारी महाराष्ट्र की जो टीम देख, ठीक है. Okay. Next from whether we can central subsidy and state subsidy both. Whether we can take. Whether we can take, yeah. Yes. Sorry. So if you're taking capital incentive, so you can take either from any one of the body, whether it be central or state. अगर आपने central की ले ली तो state की नहीं ले सकते. तो मतलब मतलब उनका जो कहने का रहता है वो रहता है one beneficiary cannot take two advantages. It can be from one. But ऐसा हो सकता है कि अगर आप central से capital subsidy ले ली है और अगर आपकी state government आपको फिस्कल इंसेंटिव देती है, जैसे जीएसटी में छूट मिल रही है, आपको मंडी सेस में छूट मिल रही है, आपको बिजली की छूट मिल रही है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग की छूट मिल रही है ना. ऑल दोस इंसेंटिव्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, तो यू कैन टेक दोस इंसेंटिव्स और सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कैपिटल इंसेंटिव ले लीजिए. तो इस तरीके से हो सकता है, बट सेम इंसेंटिव यू कैन नॉट टेक फ्रॉम बोथ द गवर्नमेंट, हाँ, सेंट्रल एंड स्टेट. ओके. नेक्स्ट फ्रॉम बिनाल्स is there any department and incentives from government for organic foods? ऑर्गेनिक फूड्स में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी सपोर्ट कर रही है. उसमें अगर आप एरोमेटिक और हर्बल प्लांट्स पे जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी सपोर्ट करती है ना. तो देयर आर डिफरेंट, मतलब ये सेंट्रल में भी है, सेम चीज आपको स्टेट में भी है. मिनिस्ट्री ऑफ, जो आपका स्टेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट भी आपको सपोर्ट करते हैं. सो देयर आर इंसेंटिव्स फ्रॉम there are incentives for organic food, there are incentives for organic agriculture as well. Okay. Yes. Next is how should we undertake industry research for particular client and how to start field research for particular industry? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं इस तरीके से क्वेश्चन ही को ढूंढना चाह रहा था कि कोई आए इस तरीके से. तो मैं मतलब फॉर सीए आई वुड से कि यू शुड गेट इनटू एडवाइजरी, एंड फॉर डूइंग रिसर्च यू नीड टू रीड अ लॉट, यू नीड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इंडस्ट्री. जैसे मैंने पहले कहीं कहा भी कि आपको उसका पास्ट भी मालूम रहना चाहिए, करंट भी मालूम रहना चाहिए, फ्यूचर को भी आप एंटिसिपेट कर सकें. तो कोई एक बुक नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है, या कोई एक किताब नहीं है ऐसी कि वो ये लाल किताब पढ़ लिया तो आपको सब चीज आ जाएगी, ऐसा नहीं है. आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी. लॉट ऑफ एग्जीबिशंस यू नीड टू अटेंड, लॉट ऑफ सेमिनार्स यू नीड टू अटेंड, लॉट ऑफ बुक्स, ऑनलाइन मटेरियल, और आजकल गूगल के जमाने में बहुत सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है कि आपको कोई चीज ढूंढनी नहीं पड़ती है. गूगल पे बस यू नीड टू नो द राइट कीवर्ड्स डालो और गूगल पे सब चीज आपको गूगल पे मिल जाती है. तो गूगल इज अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर दैट. तो ये है, मतलब उसके लिए कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है, एक हैपहैजर्ड चीज ही है, मगर एक डेडिकेटेडली करना पड़ेगा आपको. कि हो सकता है क्योंकि इनिशियल पीरियड फॉर एनीथिंग व्हिच यू स्टार्ट फॉर इज वेरी मच, मतलब एक वो रेम्यूनरेटिव नहीं दिखता है, पैसा नहीं आता है, काम होते नहीं दिखते हैं, तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट. तो उसको इग्नोर करते हुए धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना रहता है. तो यू गेट अ नैक ऑफ द इंडस्ट्री थ्रू एक्सपीरियंस ओनली. एंड कोई भी रिसर्च चालू करनी है तो धीरे धीरे कोई एक आर्टिकल से चालू कीजिए, न्यूज से चालू कीजिए, तो यू गेट एन आइडिया अबाउट इट. ओके. ओके, अच्छा सर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जोड़ना चाहूंगा मैं कि अगर आप मुझे कोई भी प्रोडक्ट देंगे, तो एग्जांपल के तौर पे आपने अगर मुझे बहुत जनरल से जनरल, आपने को अगर नींबू पे बोलेंगे तो मैं नींबू पे आपको एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्री बता सकता हूँ, फ्रॉम फ्यू लैक्स टू फ्यू करोर्स. मैं आपको, अगर आप मिल्क बोलेंगे तो मैं मिल्क पे आपको बहुत सारी चीज बताता हूँ. मावा जो रूटीन प्रोडक्ट है वो छोड़ के नए प्रोडक्ट बता सकता हूँ. मसाले में मैं आपको हजारों चीज बता सकता हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या कर सकते हैं. एनी प्रोडक्ट यू से, आपको किस बारे में बात करनी है, कि ऑरेंजेस पे बात करनी है तो मैं ऑरेंज की आपको बता सकता हूँ कि स्पेन में ये वैरायटी है, हमको स्पेन की ये वैरायटी यूज करनी चाहिए और इससे ऐसा ऐसा होगा. मैंगो में अब लोग बोलते हैं कि मैंगो का सीड सबके लिए वेस्ट है.
सीड से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कैसे किसके काम आता है, वो मुझे मतलब आई कैन टॉक अबाउट इट एंड कीप टॉकिंग ऑन इट कि क्या क्या हो सकता है। संतरे का क्या आप एप्पल का छिलका उतार के फेंक देते हो, मगर एप्पल के छिलके से इतना एक जबरदस्त कंपोनेंट निकलता है जिससे सारी कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री चलती है। तो हम उस पर बात कर सकते हैं, है ना। सेम चीज केले के ऊपर, बनाना के ऊपर, सेम चीज ऑफ लॉट ऑन ये तो आप रूटीन प्रोडक्ट हुए, आप मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स हुए। इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ हर्ब्स कि अश्वगंधा क्या है, क्यों है, कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है, कहाँ जा सकती है। अनार के दाने का एक्सट्रैक्ट जापान क्यों जाएगा, मैं वो आपको बता सकता हूँ। उसके छिलके का एक्सट्रैक्ट कहाँ काम आता है, मैं आपको वो बता सकता हूँ। सफेद मूसली क्या होती है, सिर्फ सफेद मूसली को जिस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, उसके बाद क्या है। मैंने किसी एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ, नेशनल स्टेट सेंट्रल का एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ, उनके साथ हमने शुगर केन का जो छिलका रहता है उससे एक वैक्स निकलता है, उसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट डिस्कस करा है, उस पर हमने काम करा है। मतलब विच इज नो इन इंडिया, मगर इट इज कमर्शियली वायबल आल्सो इफ आई टॉक अबाउट। हमने उस पर काम करा है, उस पर काम करते हैं। तो मतलब इट कम्स बाय एक्सपीरियंस, इट कम्स बाय Yes. लर्निंग, कॉन्स्टेंटली लर्निंग। वो डे वन पे कुछ भी नहीं है, मगर आप भिड़े रहेंगे तो हो जाएगा। Yes, sir, definitely. So move to next question. Next question is related to subsidiary again. Ki whether subsidiaries are available on all food processing industries, or government come up with letter of interest from time to time, and we have to wait for LOI from government. And तो and next one, what are the components eligible for subsidies, and whether it is available on total project cost or on plant and machineries only. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की सब्सिडीज रहती हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड सब्सिडी रहती हैं। दे Okay. कम फॉर लिमिटेड टाइम विंडो, whenever the expression of interest is issued within 45 days or 30 days, whatever the criteria is, from time to time you need to apply for incentives. मगर इसके अलावा स्टेट की बात करें तो स्टेट की सब्सिडी ओपन एंडेड रहती है, जब तक उनके पास बजट है या जब तक उनके पास है तो उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। whenever the notification is active, the scheme is active. And again, every scheme has different components which they give subsidy on or incentive on, but the most common components which they give subsidy on is plant and machinery and technical building, the building which is used for production, the production area. ये दो कॉमन कंपोनेंट रहते हैं जिसके ऊपर सब्सिडी मिलती है। Okay. हाँ। Next question is again from Neeraj Bafna. In Northeast, the biggest problem is that they don't get marketing support. One second. To market their product, as logistic problems are there. Suggest how can we get marketing support? नॉर्थ ईस्ट में लॉजिस्टिक एक जरूर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मार्केटिंग सपोर्ट में वी वुड बी एबल टू हेल्प टू सर्टेन एक्सटेंट। बहुत सारे कनेक्ट्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं हमारे इन यूके, यूएस, जापान, कोरिया, वहाँ पे हमारे काफी सारे वेंडर्स हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स। इंडिया में भी काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के साथ हम काम करते हैं, हमारे से कनेक्टेड हैं। तो वी कैन मतलब एक वापस उस पर बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। तो सिर्फ जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, सिलीगुड़ी में मतलब वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में एक क्लाइंट थे हमारे जो पनीर को कुछ अलग तरीके से प्रोसेस करके जर्मनी एक्सपोर्ट करते थे। तो पूरा का पूरा जो उनका लॉजिस्टिक है या पूरा उनका जो मार्केटिंग है वो हमने सेटअप किया था कि वहां से कैसे कहाँ कैसे कैसे जाएगा। तो we can discuss on product to product basis. So we can help in marketing support. Okay. One more last question. Suggest where we can get some good seminars and exposure related. अक्षय जी आप शेयर स्क्रीन बंद कर सकते हैं अपना। मैं शेयर स्क्रीन बंद कर देता हूँ जी। Suggest some good seminars and expo ना। Related information which held in any part of world. Yeah. तो इंडिया में जैसे है ना एक अन्नपूर्णा करके होता है, वर्ल्ड ऑफ फूड होता है, SIAL करके एक होता है। तो there are lot many conferences that happen, lot many seminars that happen. There are various industry based forums also, जैसे CII हुआ, FICCI हुआ, ASSOCHAM हुआ, ये लोग भी फूड इंडस्ट्री के लिए अलग अलग सेमिनार करते रहते हैं। Internationally, if I talk about again, internationally there is
this exhibition called FOOMA which happens in Japan. Then there is Cial in France. Then there is natural food and fruits and nuts, specialty foods, which happens in UK. So there are lot many things which happen. हाँ, और बहुत सारी जगह विजिट करें. दुबई की बात करूं तो गल्फ फूड होता है वहाँ पे. So and we attend mostly all of them. टर्की में फिर एक नट्स एंड सीड्स के ऊपर बहुत स्पेसिफिक एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो है. तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी. फूड इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डिफरेंस है कि सेम ही है? नहीं मैम, सेम है, सिनोनिमस है, कोई अंतर नहीं है. फूड भी वही है. फूड प्रोसेसिंग बिकम्स मतलब एक वो प्रोसेस में हम जनरली बात हमारी लैंग्वेज में फूड प्रोसेसिंग ज्यादा बोलते हैं हम कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बट फूड इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग सिनोनिमसली ही यूज किया जाता है. क्योंकि अभी हम लोग इन दिनों अभी थोड़े दिन पहले ही वियतनाम टूर जाके आए, इंटरनेशनल टूर पे WIRC के हम लोग गए थे. तो वहां पे अभी पता चल रहा है कि वियतनाम में इंडिया से काफी मसाले वगैरह एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर इंडियन ज्यादा जाने लगे अभी. तो वहां पर इंडियन होटल इंडस्ट्री अभी वो होने लग गई है, तो उसकी वजह से यहाँ से काफी इंडियन ग्रेन्स और इंडियन फूड्स काफी एक्सपोर्ट हो रहे हैं अभी. यहाँ बहुत सारी चीज आती है, ग्राउंडनट्स तक जाते हैं वहां पे. और अगर जैसे एक क्वेश्चन बीच में ऊपर जो गया ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक में एक बहुत अच्छा आपके साथ एक पॉइंट रखना चाहूंगा. जब हम जापान विजिट कर रहे थे तो जापान में टोक्यो इज द कॉस्टलीस्ट सिटी, मतलब टॉप 3, इट इज इन द टॉप 3 कॉस्टलीस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना. टोक्यो में भी गिंजा करके जो जगह है वो टोक्यो का सबसे कॉस्टलीस्ट जगह है, गिंजा इन टोक्यो. गिंजा में एक मॉल है मात्सुजुकाया मॉल, और एक स्टोर है टाकिया करके एक स्टोर है वहां पे. वो इतने प्रीमियम स्टोर्स हैं वहां पे. इंडियन मिर्ची दिल्ली से एक बंदा एक्सपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक इंडियन चिली पाउडर. दे सेल इट फॉर, मतलब वहां रिटेल प्राइस है 16,000 रुपीज पर केजी. तो एंड इन इंडिया आज की तारीख में इंडिया में अभी चिल्ली के रेट बहुत ज्यादा है. आज 500 रुपए किलो चिल्ली का पाउडर है रिटेल में. नहीं तो चिल्ली के रेट यूं रहते हैं 100-125 रुपए के लगभग रहते हैं. मैं जब देख के आया था जब जापान में, तब 100-125 के रेट थे. इंडिया में वहाँ 15,000 रुपए किलो बेच रहा था वो. तो such kind of margins you get if you market your product well, if you process your product well, if you pack your product well. तो क्योंकि क्या हम हमारी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स को भी सबको यही चीज सबसे पहले बोलते हैं, आदमी मुंह से खाने से पहले आंख से खाता है. आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखना चाहिए. इफ यू हैव प्रेजेंटेड योर प्रोडक्ट वेल, तो उसको वहीं अपील कर गया तो मतलब योर प्रोडक्ट इज सक्सेस. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से हैं. One more question, sir. Can you explain the concept of technology transfer in food industry with your practical experience, how to implement the same? Yes. Again, very good question. तो मतलब जो हमने जब 2015 के लगभग की बात है, तो there was this patented कोरियन टेक्नोलॉजी जो वहाँ पे ही अवेलेबल थी, इंडिया में अवेलेबल नहीं थी. एंड वेरी नाइस टेक्नोलॉजी. हम बहुत सारी जगह ढूंढे, करे, समझे, मगर वो कोरियन टेक्नोलॉजी, उसके प्रोडक्ट हमने काफी सारी फिर उनसे बातचीत करी. जापान भी गए, जापान में भी टेक्नोलॉजी देख के आए, वहां पे भी नहीं समझ में आया था. तो वो जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी. तो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना, यूज करना, दैट इज called technology transfer, which is technology which is not available in India, or it is only limited to certain people because of patents or copyrights or anything of that sort of, or any kind of intellectual property rights. तो उस तरीके की जब आप कोई लेते हैं तो उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज रहती हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना रहता है. कितने समय तक आप यूज करेंगे, रॉयल्टी का के पेमेंट्स किस तरीके से है, वन टाइम पेमेंट है, कैसा पेमेंट है. तो वो अगेन जो पेटेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है वो क्या कोवेनेंट्स के साथ आ रहा है, उसके बाद उसके ऊपर एक लीगल टीम के साथ बैठ के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम होता है. तो मगर हम काफी करते हैं. उसके बाद एक जो सबसे पहला असाइनमेंट था वो तब किया था हमने. उसके बाद फिर जर्मनी से कुछ टेक्नोलॉजी थी, एक स्विट्जरलैंड से कटिंग के बहुत अलग तरह की टेक्नोलॉजी थी, उस पर हमने कुछ काम किया था.
I think, sir, we have taken all the questions. So, I one think all the question. question. I हो think रहा है. one more question. Yes, I want to Yeah. know more about plant-based skincare products. The approval or certificate required, or ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो गया ये, मगर yes, कॉस्मेस्यूटिकल्स भी उसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कॉस्मेस्यूटिकल्स। तो इसके लिए सर्टिफिकेशंस अप्रूवल्स जो रहती हैं अभी फिलहाल, अगर आपका ये उसमें आता है कि अगर इफ इट वुड बी एबल टू सेल ओवर द काउंटर और इज इट अ प्रिस्क्राइब्ड स्किन केयर प्रोडक्ट, किस तरीके से आप कर रहे हैं, तो उसमें अप्रूवल्स बहुत ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, कोई ज्यादा नहीं है, मगर बट स्टिल ये कोई डोमेन स्पेसिफिक अगर कोई बताएगा, किसी से आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉस्मेटिक्स का जो काम करते हैं, तो दे वुड बी एबल टू सजेस्ट बेटर ऑन इट। okay. So one more question. It's plant-based like soya butter, उसका OTC. कंटिन्यूसली उनको उसके कंटिन्यूएशन में उन्होंने पूछा है ये, तो Yes, शिया yes, बटर yeah. से, शिया बटर It's a से country. कॉस्मेटिक्स बनते हैं, Yeah. मगर it is better to ask someone who is domain specific and working on cosmetics industry. Proprietary food से related अगर है, edible चीज है, तो उस पे I can मैं आपको एक सील टप्पा लगा के बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज मैं ऐसे से। Okay. So yeah, we have done. Cool. Okay. So all the question has been answered quickly and वो crispy आंसर आपसे मिल गए सारे। अभी भी लोगों के और भी काफी चीजों के ऊपर रहेंगे क्वेश्चन, अब जब बैठ के सोचेंगे कि बहुत कुछ है फूड इंडस्ट्री में। पहले फूड इंडस्ट्री को या खाना बनाने को बड़ा वो समझा जाता था कि अरे अभी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। सो नाउ आई वांट टू रिक्वेस्ट सी विजेता जायसवाल टू गिव। एक क्वेश्चन रह गया क्या, ये एक बंदे ने ये शायद ये बात फिर दिखाई, वी इंपोर्ट डेट्स इन इंडिया फ्रॉम ईरान and then package it through labor and packing machine. Are we into food processing industry? नहीं, just packaging is not called food processing. वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ जाता है कुछ कुछ स्कीम्स में, मगर this is not food processing. लास्ट क्वेश्चन बोलते आपसे कैसे टच में आ सकते हैं? वो इन्होंने इतनी देर तक अपना वो थैंक यू वाला स्क्रीन खोल के रखा हुआ था। हाँ, उसमें पूरा उनका डिटेल वगैरह सब लिखी हुई थी। मैंने ही बोला शेयर स्क्रीन बंद कर दीजिए तो हम लोगों के फेस दिख सके। तो सर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे सकते हैं उनको, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। माय मोबाइल नंबर इज, अगर चैट में यहाँ से हाँ टैप में आप लिख दीजिए ना। चैट शायद बंद है सबके लिए, चैट इज ओनली फॉर होस्ट एंड पैनलिस्ट आई सपोज, बट माय मोबाइल नंबर इज 9406 and 9 to 4 backwards 987654. Yeah. So you can, नहीं आपने जो लिखा नहीं क्वेश्चन आंसर में डाल देते हैं ना। क्वेश्चन आंसर में डालता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर में मैं शायद मैं खुद क्वेश्चन नहीं पूछ सक रहा हूँ। हाँ ये भी Everybody must be focusing 9406 on his speech. कोई स्क्रीन देख ही नहीं रहा होगा। हाँ उनके आंसर लिखने में डाल दीजिए, उनके आंसर में डाल दीजिए। हाँ जी 9406 9876। देखिए नीरज जी ने काम कर दिया वो। थैंक यू नीरज जी, क्योंकि हम भी नहीं लिख पा रहे क्वेश्चन एंड आंसर, हम लोग सिर्फ आंसर दे पा रहे, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। So that's the thing. So it was gone very nicely. So Vijeta, you can take. Thank you Pinky. रोटी कपड़ा और मकान in life, the most essential things, food comes first. We always thank God for keeping our homes filled with food, but today we are thanking our learning faculty Shri Akshay Jain for opening our eyes to the plethora of opportunities in the food industry, or rather the food processing industry, which are already existing but we were unaware of. Thank you Akshay ji for being such a lucid speaker and sharing your vast expertise in the food industry and giving us a lot of insight and tips. And also a big thanks to the entire WIRC team, especially Chairman Murtuza sir,
Vice Chairperson and very good friend Pinky, Coordinator Pooja Kedia, and the background support staff for organizing this unique topic webinar. And of course, the members who have attended in such large numbers and made this program a success. A Thanks to big all of thank you you as to well. all. Thank you so much. Thanks to Thank all you, of you. Akshay ji. Thank you, Akshay ji, for your